میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے فضل کیا، ہمیں محفوظ رکھا، صحت و تندرستی دی اور اس قابل کیا کہ ہم آج کا یہ دن دیکھ سکیں۔ تیرے اس مقدس دن کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جب ہم تیری حضوری میں آ کر تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ خداوند اس عبادت کے موقع پر ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم تیری رہنمائی مانگتے ہیں۔ خدا پاک روح تو ہمیں معمور کر، تاکہ آج کی عبادت کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ آج کے لوگ کسی پریشانی، دکھ یا تکلیف کے ساتھ یہاں عبادت میں آئیں یا آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبھی کو خداوند تو برکت دے۔ آج اس عبادت کے وسیلے سے ہر ایک کی زندگی میں معجزہ ہو۔ آج اس عبادت کے وسیلے سے سبھی کا ایمان مضبوط ہو سکے۔ خداوند تو ہم سب کی حفاظت و نگہبانی کر، ساری عبادت میں تو ہمارے ساتھ ہو۔ جتنے لوگ خداوند مختلف جگہوں سے عبادت کے لیے یہاں پر آتے ہیں، خداوند انہیں حفاظت سے یہاں پر پہنچا، اور جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں بھی خداوند تو برکت دے، ان کے بھی ایمان کو مضبوط کر۔ اور آج کی اس عبادت کو ہر ایک کے لیے، جو بھی اس عبادت کو آن لائن دیکھتا ہے یا جو فزیکلی ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبھی کو خداوند ایمان میں مضبوط کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کرے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 9 گائیں گے۔ زبور نمبر 9 دوسرا حصہ، دائیں یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا۔ زبور نمبر 9 دوسرا حصہ۔
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर सलीम अख्तर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम दुआ करेंगे कि खुदाबंद आज के दिन को हमारे लिए, इस मौके को हमारे लिए बरकत का बायस बनाए और ख़ास तौर पर हम इस जगह के लिए दुआ करेंगे। खुदाबंद इस जगह को FC कॉलेज को बरकत दे और खुदाबंद का जलाल, खुदाबंद के नाम को जलाल इस अदारे के वसीले से मिलता रहे। इस अदारे को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को खुदाबंद बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे और मुल्क में जो मसाइल हैं उनको भी खुदावंद ख़त्म करे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में मसीहों को ईमान में मजबूत करे, इज़हार सानियों में भी ईमान में कायम रखे और ईमान में कायम रहते हुए दुखों का मुकाबला भी भरोसे के साथ और खुदा पर तवक्कुल रखते हुए कर सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बड़ी आजिज़ी और खुशनी खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदाम आज दिन के लिए खुदाम दामन बहुत सारे लोगों से अच्छे नाम थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये तेरी ख़ास मेहरबानी जिंदों की ज़मीन पर रखा, सफ़र को मुबारकी या सलामती के साथ यहाँ पर पहुँचाया ताकि खुदाम हम एक ख़ानदान की हैसियत से, जमात की हैसियत से मिलकर खुदाम तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूह कसरत से नाज़िल कर। जितने तेरे लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते, जो अभी रात में बाफादत पहुँचा, जो अपनी परेशानी मुश्किलात की वजह से आज तेरे घर में नहीं आ सके, खुदा उनको उन तमाम परेशानियों से, मुश्किलात से, बीमारियों से शिफा दे, आज़ाद कर ताकि सब मिलकर खुशी के साथ खुदा तेरी इबादत करे, तेरी प्रशंसा करे। खुदा जो कुछ इस वक्त तेरी हमद और साय के लिए गाया बजाया जाए वो बखूब की मानत तेरे हुजूर को बोल। जो कुछ तेरे पाक कलाम में से सुने सीखें उस पर अमल कर, उसको अपनी जमा अपना जाम में 100 गुना आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते, जिसके वसीले से खुदा तू अपनी कलीसिया की रूहानी खुराक देने वाला है। खुदा तू अपने खादों को अपने पाक की मामूल से ममूर कर, जो आज की तेरी कलीसिया की ज़रूरत है उसके मुताबिक खुदा तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम से तेरी कलीसिया की इस रूहानी खुराक को खुदा शेयर कर और अपनी कलीसिया को भी बड़ा फजल दे कि मैं सुनने वाले न बल्कि इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखे, अपनी ज़िंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल है। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, अपनी कलीसिया को हर किस्म की दहशतगर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, अपने खादमों को अपने पाकों की मामूली से ममूर करना, अपनी कलीसिया को उस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत देना। खुदा तूने आलमगीर कलीसिया को इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, इंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे कि इस काम को बड़ी जान शान के साथ अंजाम दे ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे। तेरा जल्द दुनिया में आना, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए तेरे लिए मिन्नत करते हैं। खुदा हमारे मुल्क में अमन ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर, मुल्क के कुनानों का करो दानाई फैम दे, जो मुल्क की मसाइल पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल बात। ऐसी कौली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे लोगों ने इस अदारे को इसलिए कायम किया कि इस अदारे के वसीले से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल जाए। खुदा तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और खुदा इसके इंतज़ाम चलाने वाले आला अफसरान के लिए, तमाम फैकल्टी के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ और एडमिन के लिए और उन तमाम लोगों के जो इस अदारे से मुंसलिक हैं, एक एक के लिए खुदा तेरी हिकमत हो, तेरी दानाई को, तेरी मोहब्बत को, तेरा फजल उनकी ज़िंदगी में कसरत ना है।
फजल दे ताकि खुदाम वो अपने कामों से अपनी जिंदगियों से खुदाम इस अदारे की तरक्की के लिए अपना रोल सर अंजाम दे ताकि खुदाम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलेगा। दान तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंग व जदर में हैं, दाग खाने में हैं, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में, खुदाम तू अपने लोगों को ईमान में मजबूत कर, हिकमत दानाई से बात फजल दे ताकि खुदा जिस तरह तेरी कौम बनी इसराइल ने सरबलंद उसे तूने किया, अपनी बरकतों से मालामाल किया, और खुदा इसी तरह तू अपनी कौम को भी बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे, ताकि खुदा तेरी कौम भी सरबलंद हो और तेरे नाम को जलाल देने का सुबह बनेगा। हर तरह से उनकी हिफाजत और निगरानी करना, अपनी बरकतों से मालामाल करना बाप, कभी किसी चीज की कमी ना आने देना बाप अपने लोगों को। खुदावंद हम अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम गुनहगार इस लायक नहीं कि तेरे सामने झुक सके, तेरे इकलौते बेटे के फजल के वसीले से जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारी खातर अपनी जान दे दी, और हमको ये हक बख्शा कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं, तेरे सामने झुक सकते हैं, तेरे सामने झुक कर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मानाजातों के इल्तिजाम को गुजरा सकते, क्योंकि और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीले से कोई भी इंसान जिंदगी पा सके और निजात पा सकेगा। खुदा तुम्हारे शहर पर, हमारे मुल्क पर अपना रहम कर, तमाम दुनिया पर अपना रहम कर, डेंगू और कोरोना को खत्म कर, तमाम दुनिया से खुदा इस कोरोना वायरस को खत्म कर, अपना जलाल जाहिर कर, अपना मौजूदा जाहिर कर ले, क्योंकि खुदा तुम मौजूदात का खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। खुदा तमाम दुनिया को बहाल कर, हमारे मुल्क, हमारे शहर को बहाल हो, बहाल हो, खुशहाल हो, और लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तुत करे और तेरे नाम को जलाल दे। जो लोग खुदा इस वारिस के स्वभाव से बीमार हैं, खुदा उनके लिए तेरी मदद कर, उन्हें तंदुरुस्ती से दे, ताकि वो तन से निजाब कर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जलाल दे। ऐसी कलीसिया के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपनी कलीसिया को यहाँ पर कायम किया कि इस कलीसिया के वसीले से खुदा तेरी गवाही तेरा जा, खुदा तुम्हारी कलीसिया को सरबलंद कर, सरफराज का एक पहाड़ का शहर बना, ताकि खुदा ये कलीसिया तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सुबह बनती रहेगा। तेरे खादम के लिए, उसके घर के लिए, उसके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत और तेरी इस्लाम की को मार, अपनी कलीसिया के लिए तेरी बरकत, तेरी सरफराजी को मारते हैं। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं उनके लिए तेरे के मदद कर, तुम्हें शफा दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाता, जो बेघर लोग उनको घर नहीं आता, जो बेलाज जोड़े उनको औलाद जैसी निमत से मालामाल करता। इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूप कसरत से नाज़िल कर, कोई खाली हाथ ना लौटे, इस तेरे कलाम की बरकतों से मालामाल होकर हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम की वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 18 गाएंगे। ज़बूर नंबर 18 आपके ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर नंबर 18 तीजा हिस्सा, ज़बूर नंबर 18। Hello.
सरों को झुकाएं, हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार मिलकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। इसलिए हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह पे हम पर फजल करता है। खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू बड़े बड़े मौजज़ात और बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगी में करता है। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ इस वक्त अपने आप को तेरी हजूरी में महसूस करते हुए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम में से हर एक यीशु के नाम में शिफा पाए। खुदावंद तू हमें छू दे, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करे। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से हर एक को छू दे, ताकि हमारी हर एक कमजोरी, बीमारी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सब की जिंदगी में मौजज़ा हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत के वसीले से हम सब शिफा पाएं। खुदावंद दुआ करते हैं अपने घरानों के लिए, हमारे घरानों के एक एक फर्ज को खुदावंद तू छू दे, ताकि तेरे फजल के वसीले से सभी लोग रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर शिफा पाएं। हर एक रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम से हमारे घरानों से जाती रहे। इसी तरह खुदावंद कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और उनके खानदान के लिए, भाई जमील के लिए, इसी तरह से बहन फायजा के लिए, इसी तरह से भाई रॉबिन की फैमिली के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से खुदावंद बेटे यशुआ के लिए दुआ करते हैं, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए दुआ करते हैं, बहन फौजिया के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। मिसेस नजीर जियाई को और बहन मिसेस सरवर को भी तेरे पास ले आते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे, इनकी जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर खुदावंद इन सब के लिए दुआ करते हैं और बतौर कलीसिया खुदावंद इनके लिए शिफा मांगते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, तूने छू और उन्हें औलाद की बरकत बख्श दे। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं जो कोरोना पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाए। खुदावंद तू रहम कर, तू छू और शिफा दे। खुदावंद कोरोना को इस दुनिया से, हमारे शहर, हमारे मुल्क से खत्म कर, दुनिया को बहाल कर, ताकि दुनिया में कारोबारी सरगर्मियाँ, इसी तरह से सोशल गैदरिंग्स या मजहबी सरगर्मियाँ जो हैं, इबादत हैं, आज़ादी के साथ हो सके और यीशु का नाम जलाल पा सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और जब क्वायर गीत गाए तो जरूर साथ गाएं, ताकि आप लोग भी इन गीतों को सीख सकें और ये कलीसियाई गीत बन सकें।
पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की टीम हमारे साथ इबादत में शामिल होगी और आइंदा अतवार को हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी संडे के तौर पर मनाएंगे और उस अतवार को होने वाली इबादत का जो हदिया है वो भी हम बाइबल सोसाइटी की खिदमत के लिए देंगे। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आइंदा अतवार आने वाली इबादत में ज़रूर हमारे साथ शामिल हों और उसमें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से स्टॉल भी लगाया जाएगा जिसमें उनकी जो तरफ से जो प्रिंटेड लिटरेचर है या उसके अलावा बाइबल्स हैं वो आप उनसे ले सकेंगे। इसलिए ज़रूर जो लोग आज नहीं आए उन्हें भी बताएं ताकि वो भी हमारे साथ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी संडे में शामिल हो सके। इसके साथ ही गुज़श्ता साल में हमने नवंबर के अख्ताम पर एक बाइबल कोर्स का अख्ताम किया। हमने एक बाइबल कोर्स का इनेकाद किया जो 2 माह तक चला और उस बाइबल कोर्स को पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से तरतीब दिया गया था और उस कोर्स के अख्ताम पर सर्टिफिकेशन भी हमने ये ऐलान किया था कि की जाएगी। इसलिए जो जिन तलबा तालिबात ने उस कोर्स में हिस्सा लिया उनके लिए अगले एतवार इबादत के बाद एक तकरीब होगी जिसमें हम उनको सर्टिफिकेट्स देंगे। इसलिए जिन्होंने उस कोर्स में हिस्सा लिया था वो ज़रूर अगले एतवार इबादत में आए और इबादत के फ़ौरन बाद हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के साथ मिलकर उस बाइबल कोर्स की कामयाब तकमील के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। और इसके अलावा अगले एतवार में अशायर बानी की भी इबादत होगी। खुदा उनकी मेज़ पर आने के लिए भी उसको तैयार करके आए। चंद शादी की पुकारे हैं। इमरान भट्टी व असलम परवेज भट्टी, उम्र 30 साल, हालत कमवारा, मजंग फिरोजपुर रोड लाहौर के रहने वाले की शादी अक्सा सलीम व सलीम रजा, उम्र 35 साल, हालत कमवारी, शाह जमाल फाजलिया की रहने वाली के साथ 26 फरवरी 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। वंदना शाकिर व शाकिर सनी, उम्र 22 साल, हालत कमवारी, DHA लाहौर की रहने वाली की शादी आसर एहतशाम व एहतशाम नई, उम्र 23 साल, हालत कमवारा, अस्क्रीटन लाहौर के रहने वाले के साथ 19 फरवरी 2022 को होना करार पाई है और यह शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। सानूर पत्रस व पत्रस मसीह, उम्र 20 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी विशाल रहमत व रहमत मसीह, उम्र 26 साल, हालत कमवारा, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 20 फरवरी 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से उनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। मिशेल असलम व असलम परवेज, उम्र 22 साल, हालत कमवारी, मजंग फिरोजपुर रोड लाहौर की रहने वाली की शादी अबरून कमर व शोशील कमर, उम्र 28 साल, हालत कमवारा, हमजा टाउन लाहौर के रहने वाले के साथ 20 फरवरी 2022 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से उनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए हम इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए खड़े होंगे और पहले हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर दवाइया रूम में और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे जलाल को और इसके साथ ही गीत के इख्तिताम पर हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे।
खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians, chapter 1, verses 6 to 10. खुदावंद के कलाम में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं, उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता हो तो मलाउन हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते कि तूने फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, हमने तेरी हम के गीत गाए हैं, तेरी तारीफ की है और अब तेरे कलाम की तरफ ध्यान कर रहे हैं। खुदा पाक करूँ तो हमें तैयार कर, खुदा पाक करूँ तो हमें हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, ताकि तेरे कलाम से हम बरकत पा सकें। खुदावंद, मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। गुज़श्ता इतवार से हमने गलतियों के खत पर सीरीज को शुरू किया है और पहले बाब में से ही गुज़श्ता इतवार भी हमने सीखा और उसमें से कुछ हवाला मैंने बताया था कि हमने छोड़ दिया है, जो हम इस इतवार में करेंगे। 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक आज हम देख रहे हैं। और इस पूरे पहले बाब में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने चुनाव का, अपनी बुलाहट का, अपने भेजे जाने का और अपने खुदा के साथ जो ताल्लुक है उसका जिक्र किया है। अगर हम 11वीं आयत को देखें तो 11वीं आयत में उसने लिखा, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान किसी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची, ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं जब चुना गया और उसके बाद जब यीशु मसीह पर जाहिर हुआ तो किस तरह से वो खिदमत के लिए तैयार हुआ। ये इस 11वीं आयत में से हमें मुक़द्दस पौलुस अपने चुनावों के बारे में बताते हुए नजर आते हैं। पहली आयत को अगर हम देखें तो उसमें पौलुस कहता है कि पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। यहां पर वो अपनी रसालत का जिक्र करता है और रसूल का मतलब है भेजा जाना, जिसके लिए इसके जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब ये है the one who is sent, जो कि भेजा जाए, जो कि पैगाम देकर भेजा जाए। और यीशु यहां, पौलुस रसूल यहां पर यीशु की तरफ से भेजे जाने का जिक्र करते हैं कि मैं यीशु की तरफ से रसूल होकर भेजा गया हूं। और उसके बाद जो आज हमारा तिलावत किया गया उसकी 10वीं आयत में है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमी को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमी को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। यहां पर पौलुस ने अपने आप को मसीह का बंदा कहा है। यानी 3 मुख्तलिफ हमें यहां पर ये पौलुस रसूल अपने बारे में और गलातिया की कलीसियाओं को भी अपने बारे में बताते हुए नजर आते हैं। पहले सबसे पौलुस ने कहा कि मुझ पर यीशु का मुकाशफा हुआ, यानी यीशु उस पर जाहिर हुआ और यीशु ने उसको चुना। फिर पहली आयत में उसने कहा कि यीशु ने मुझे भेजा कि मैं रसूल बनूं। और फिर 10वीं आयत में पौलुस कहता है कि मैं मसीह का बंदा हूं। बंदा का लफ्ज अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका बाइबल मुकद्दस में जो मानी है वो बताता हूं।
बंदे का लफ्ज अक्सर जो खातीन है वो अपने शोहर के लिए इस्तेमाल करती है, ये मेरा बंदा है। यूनानी जुबान में जो बंदे का लफ्ज है उसका मतलब है सर्वेंट, नौकर, दोलोस, जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो जब बीवी ये कहती है ये मेरा बंदा है, तो इसका मतलब जो है अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में लेंगे तो इसका मतलब है कि ही इज माई सर्वेंट। तो इसलिए बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने शोहर के बारे में तो जरूर देखें। इसलिए आप अक्सर बंदे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो बहनें हैं, तो कभी कभी मोहब्बत से करती हैं कि ये मेरा बंदा है, तो कभी कभी गुस्से से कर सकते हैं। तो जब गुस्से में करेंगे इसका मतलब ये मेरा नौकर है, तो इसलिए इस लफ्ज से इज्तनाब करना है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में ये गलत लाम बन चुका है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पौलुस रसूल ने कहा कि मैं मसीह का बंदा ना होता तो मैं आदमी को खुश करता, तो ये पौलुस कहता है कि मैं मसीह का गुलाम हूँ, मसीह का खादिम हूँ, सर्वेंट हूँ, मैं मसीह का खादिम हूँ। और फिर उसके बाद 6 से 10वीं आयत तक पौलुस रसूल ने मसीह का बंदा होते हुए जो गलतिया की कलीसियाएं थीं उनको खुशखबरी के हवाले से आगाह किया। इस खत का पस मंजर मैंने गुज़श्ता अखबार में बताया था। इस खत का पस मंजर ये है कि मसीहों के दरमियान बहुत से ऐसे मसीही उस्ताद थे जो कि यहूदी मजहब से मसीही हुए और उन्होंने मसीहत में आने वाले लोगों को जो गैर कौमों से मसीही हो रहे थे उन्हें ये कहा कि आप पहले खतना करवाएं, फिर उसके बाद शरीयत पर अमल करें और फिर आप हकीकी मसीही बन सकते हैं। यानी मसीही होने के लिए उन्होंने ये जरूरी करार दिया कि पहले आप यहूदी हो और फिर उसके बाद मसीही हो। इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि रोमियो का खत और गलतियों के नाम जो खत है वो बहुत ही अहम खत हैं। ये दोनों खतूत मसीहत को आज दुनिया के दूसरी कौमों में जो हमने फैलावा देखा है उसमें इनका अहम किरदार है, क्योंकि ये दोनों खतूत खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को फजल के वसीले से निजात का सबब करार देते हैं, ईमान के वसीले से निजात को जरूरी करार देते हैं। जबकि उस वक्त जब पौलुस रसूल ये खत लिखा तो उस वक्त मसीही लोगों में से ही उस्ताद ये कहना शुरू हुए कि पहले यहूदी हों और फिर उसके बाद मसीही हों, और जब तक आप शरीयत पर अमल ना करें उस वक्त तक आप मसीही नहीं हो सकते। फिर इस खत में पौलुस ने उन लोगों को कंडेम किया और इनको हम 3 मुख्तलिफ नुकात के हवाले से देखेंगे कि पौलुस ने मसीह का बंदा होते हुए खुशखबरी को किस तरह से पेश किया है और खुशखबरी को किस तरह से संभालने के बारे में बताया है। 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जब पौलुस गलतिया की कलीसियाओं को, ये सिर्फ एक कलीसिया नहीं है, गलतिया का पूरा इलाका था और उस इलाके में बहुत सी कलीसियाएं कायम थी, और उनको जब पौलुस ने लिखा तो पहला हिस्सा जो है उसमें खुदा का बंदा जो है पौलुस, जो अपने आप को मसीह का बंदा कहता है, वो बताता है कि जो मसीह का बंदा है वो मसीह के फजल पर ईमान रखता है। जबकि उस वक्त लोग जो हैं वो शरीयत के जरिए से खुदा को खुश करने और खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरने की तालीम दे रहे थे। लेकिन पौलुस ने फिर मसीह के कफारे को, मसीह की सलीब को लोगों के सामने रखा, और जो खुदा का बंदा है वो मसीह की सलीब के अलावा किसी और तरफ ध्यान नहीं करता। और खासतौर पर 6वीं आयत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं, यानी मैं हैरान हूं कि तुमने जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, तुम मुझसे किस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। फिर वो कहता है कि वो दूसरी नहीं, यानी वो दूसरी खुशखबरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। उसने इसमें ईमानदारों के लिए मसीह की सलीब को पेश किया है कि ईमानदारों के लिए सिवाय मसीह की सलीब के
सिवाय मसीह पर ईमान के कोई और निजात का रास्ता नहीं है। और दुनिया में खास तौर पर अमाल की किताब में उसके 4 बाब और 12वीं आयत में जब मसीह की खुशखबरी की मुनादी शुरू हुई तो रसूलों ने इसी को बुनियाद बनाया। और ये आयत हमें बड़ी मशहूर आयत है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाएं। और यहाँ पर पौलुस ने यीशु के फजल को और यीशु की मोहब्बत को इंसानों के सामने पेश किया। चौथी आयत इसको बयान करती है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। मसीह का फजल क्या है, इसको हमें देखने की जरूरत है। मसीह के फजल के वसीले से खुशखबरी क्या है, खुशखबरी की बुनियाद क्या है। हम बड़ा कहते हैं खुशखबरी, गॉस्पल, गुड न्यूज, ये लफ्ज हमारी जुबान से अक्सर अदा होते हैं, ये लफ्ज हमारे समातों से अक्सर टकराते हैं, लेकिन ईमानदारों के लिए खुशखबरी है क्या? चौथी आयत में इसका जिक्र है। खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत है। खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर अपना खून बहाना है। खुशखबरी हमारी निजात का पैगाम है, दुनिया के लिए निजात का पैगाम है। खुशखबरी खुदा का यीशु मसीह को दे देना इस दुनिया के लिए। और यूहन्ना के 3 बाब की 16वीं आयत जो है वो बड़ी मशहूर आयत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुशखबरी है। जब हम गॉस्पल या गुड न्यूज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये खुशखबरी, अंजील को अक्सर खुशखबरी के नाम से सुना जाता है कि ये खुशखबरी है। अंजील जो है उसका मतलब ही गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी की बुनियाद क्या है? खुशखबरी की बुनियाद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। और रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत इस खुशखबरी को बयान करती है। 8वीं आयत में इस खुशखबरी का जिक्र है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये खुशखबरी है कि हमारे गुनाहों की माफी के लिए मसीह ने अपनी जान दी। और यहां पर हालात ये थे गलतिया की कलीसियाओं में कि लोग ये कह रहे थे कि मसीह पर ईमान रखने से पहले यहूदी होना जरूरी है। मसीह पर ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम शरीयत पर अमल करेंगे। लेकिन पौलुस ने फिर खुशखबरी को बयान करते हुए कहा कि जो खुशखबरी हमने दी है ये उससे मुख्तलिफ खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि यीशु ने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपनी जान दी है। खुशखबरी ये है कि इंसान अपने कामों से या शरीयत पर अमल करने से खुदा को खुश नहीं कर सकता। हमारे गुनाहों के कफारे के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के अदालत के पैमाने को पूरा किया है और यीशु मसीह के वसीले से इंसान खुदा को खुश कर सकता है। यीशु मसीह के वसीले से ही खुदा इंसान के सामने रास्तबाज ठहर सकता है। और खुदा का बंदा जो है वो इस खुशखबरी पर ईमान रखता है। खुदा का बंदा इस खुशखबरी को फैलाता है। खुदा का बंदा इस खुशखबरी के वसीले से निजात पाता है कि यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। इसके बाद 8वीं आयत में पौलुस ने कहा कि अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊम हो। खुदा का बंदा जो है वो और बातों को रिजेक्ट करता है जो मसीह की खुशखबरी के खिलाफ होती हैं, रद्द करता है। क्योंकि आजकल बहुत से मामलात में हम गलतिया की कलीसियाओं के साथ मिलते जुलते हैं, उस वक्त के हालात के साथ मिलते हैं। आजकल कलीसियाओं में बहुत सी ऐसी तालीम है जिसमें लोग यीशु को पीछे कर देते हैं और खुद वो आगे होते हैं। लोग भी यीशु को पीछे करते हैं और उन इंसानों को यीशु से ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन जो मसीह का बंदा है, जो मसीह का खादम है, वो ऐसी खुशखबरी को रद्द करता है जिसमें मसीह पीछे हो और कोई इंसान आगे हो। यहां पर पौलुस ने कहा कि कोई फरिश्ता भी अगर आकर वो खुशखबरी जो हमने सुनाई है उसके अलावा कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन है। हालांकि फरिश्ता तो सच्चाई का पैगाम देगा। फरिश्ता जो खुदा की तरफ से है
वो तो सच्चाई का पैगाम लेकर आता है। लेकिन पौलुस के इस अल्फाज को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि फरिश्ते भी अगर यीशु को पीछे कर दें तो वो भी मलाउन है। यानी कोई भी पैगाम जो अपने आप को तो बाइबल का पैगाम कहे या कहा जाए, या कोई शख्स जो है जो खुदा का कलाम सुना रहा है और कहे ये खुदा का कलाम है, लेकिन यीशु को पीछे करने के बजाय अपने आप को आगे यीशु को पीछे करके अपने आप को आगे करे और यीशु के पैगाम को पीछे करके अपनी बातों को, अपनी कुदरत और अपने इख्तियार को पेश करे, अपने आप को बड़ा बनाए, वो मलाउन है। और उसको कबूल करने वाले भी उसने कहा कि जो उस खुशखबरी को कबूल करता है और वो सुनाता है, जो उसको कबूल करता है, वो भी मलाउन है। मसीह का बंदा सिर्फ और सिर्फ मसीह के कफारे पर, उसकी कुदरत पर, उसके इख्तियार पर भरोसा रखता है और उसके इख्तियार के मुताबिक चलता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो मसीह का बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को खुश करता है, इंसानों को खुश नहीं करता। आजकल खुदा के खादमों में भी और खुदा के लोगों में, ईमानदारों में भी ये खामी है कि हम खुदा के लोगों को, खुदा के लोग भी और खुदा के खादम भी खुदा के बजाय इंसानों को खुश करने का सोचते हैं, इंसानों की खुशनुदी चाहते हैं और मसीह को एक तरफ रख देते हैं, मसीह के पैगाम को एक तरफ रख देते हैं और सोचते हैं कि शायद हम इंसानों से फायदा हासिल करते हैं, इसलिए इंसानों का पैगाम हमारे लिए ज्यादा अहम है, इंसान हमारे लिए अहम है। कलीसियाओं में ये अक्सर मसला हमें नजर आता है कि वो खुशखबरी जो यीशु के कफारे को पेश करती है, उस खुशखबरी के बजाय हम इंसानों की तरफ देखते हैं और इंसानों के पास आते हैं, इंसानों पर भरोसा करते हैं, इंसानों को खुश करते हैं और इंसानों के पैगाम को ही ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन पौलुस ने गलातिया की कलीसिया की खामी को पेश, गलातिया की कलीसियाओं की खामी को पेश किया कि वो खुशखबरी जो यीशु के कफारे को पेश करती है वो उसके बजाय और खुशखबरी की तरफ चल पड़े। और वो खुशखबरी क्या थी कि इंसान अपने कामों के वसीले से खुदा को खुश करता है। देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि इंसान अपने कामों के जरिए से नहीं, यीशु पर ईमान के वसीले से खुदा को खुश करता है। लेकिन इस बात से एक खामी भी जन्म ले लेती है और ये इतराज भी है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि अगर मसीहों को सिर्फ ईमान से ही निजात मिली है तो फिर उन्हें कभी भी अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उनका कफारा तो यीशु ने दिया है, तो फिर उन्हें अच्छे काम करने की क्या जरूरत है? उनको तो ईमान से निजात मिली है, उनको फजल से निजात मिली है, तो फिर अच्छे काम क्यों करें? ठीक है, जैसी जिंदगी है वैसी गुजारें। रोमियो के खात में पौलुस रसूल जो है वो इसका जवाब देते हैं। रोमियो के खात के 6 बाब की पहली आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? यानी यहाँ पर पौलुस ने उसी एड्रेस किया उसी एतराज को कि अगर हम कहते हैं कि हमको फजल के वसीले से निजात मिली है, हमें यीशु के कफारे से निजात मिल गई है, हमारे गुनाहों की माफी हो गई है, तो क्या हम जब मर्जी गुनाह करते रहे, जितने मर्जी करते रहे, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं, क्योंकि हमारा कफारा तो यीशु ने दिया है, उसने सलीब पर अपनी जान दी है और अक्सर हम इसी आजादी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसी आजाद है, तो जो मर्जी करिए, यीशु ने कफारा दिता, माफी मांग लांगे, रोज सारा दिन जो भी काम किया रात को आकर माफी मांग लांगे। लेकिन पौलुस ने कहा क्या बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? दूसरी आयत में हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। जो खुशखबरी है, जो मसीह का बंदा है, वो इस खुशखबरी के मुताबिक अपनी जिंदगी को नया बना लेता है। गुनाहों के कफारे का मकसद ये नहीं है, या यीशु ने जो सलीब पर हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारे गुनाहों की माफी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो गुनाह चाहें करते रहें, जो गलती करें, खुदा ने हमारा कफारा दिया, सानू की परवाह, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर आइंदा को उसमें जिंदगी गुजारे। मसीह का बंदा
मसीह का खादम एक नई जिंदगी गुजारता है, उस खुशखबरी को अपनी जिंदगी से जाहिर करता है कि मसीह मेरी खातिर हुआ और मैं भी मसीह के साथ मर गया। ये पूछा बाप जो है इसी सारी बात को पेश करता है कि जो शरीयत की गुलामी से छूटकर मसीह के गुलाम बन गए हैं, मसीह का बंदा बन गया है, वो किस तरह की जिंदगी गुजारता है। 5वें आयत में लिखा है, हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जीवने की मुशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता हो गए। चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यहां पर पौलुस ने ईमानदारों को उस बात के बारे में या उस खामी के लिए आगाह किया है जो हमारे जहनों में आ सकती, ना सिर्फ हमारे दिलों में बल्कि लोगों के दिलों में भी आती है। इसका मतलब है मसीही आजाद है, मसीही आजाद नहीं है। मसीही यीशु मसीह के बंदे हैं, और बंदे का मतलब आपको मैंने पहले बताया, बंदे का मतलब जहन में रखना है। तो मसीह के जो बंदे हैं वो मसीह के सर्वेंट हैं, मसीह के खादम हैं। वो गुनाह के सर्वेंट नहीं है, वो गुनाह के गुलाम नहीं है, वो शैतान के गुलाम नहीं है, बल्कि वो मसीह के बंदे हैं। और मसीह का बंदा फिर मसीह की खातिर जीता है, मसीह के लिए जीता है। और पौलुस ने ही कहा फिलिपियों के खाते में, जीना मेरे लिए मसीह है। ये अक्सर आयत जनाजों पर हम करते हैं, लेकिन ये जिंदा लोगों के लिए है। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा। इसका पहला हिस्सा जो है वो खास तौर पर हमारे लिए है, ईमानदारों के लिए, कि जब हम जिंदगी में जीते हैं तो फिर हम ये जब दावा करते हैं कि मसीह का फजल जो है उसके वसीले से मुझे नजात मिली है, मेरे गुनाहों की माफी हुई है, मेरा कफारा हो गया है, मसीह ने सलीब पर मेरे लिए अपना खून बहा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम गुनाह की गुलामी से छूटकर मसीह के बंदे या मसीह के गुलाम बन गए हैं। और मसीह के गुलामी में मोहब्बत की बात आती है। मसीह को अपना मालिक या लॉर्ड मान लेना हमारी जिंदगी में तब्दीली लाता है कि हम मसीह के लिए जिए, मसीह की खातिर जिए, मसीह में जिए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से जाहिर करें और यीशु की खुशखबरी हमारी जिंदगी से जाहिर हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो तिलावत हमने की इसमें हमने खास तौर पर इस बात को देखा है कि मसीही कलीसियाओं की जिंदगी में खुशखबरी कितनी अहम है, मसीह के बंदों की जिंदगी में खुशखबरी कितनी अहम है। हमें अपने इर्द गिर्द नजर रखने की जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द कैसी खुशखबरी पेश की जा रही है। मसीह को पेश किया जा रहा है या इंसानों को? हम ज्यादातर मसीह के बजाय इंसानों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमें मसीह को कबूल करने और मसीह की खुशखबरी को कबूल करने की जरूरत है। इंसानों की पैरवी करने के बजाय, इंसानों को खुदा मानने के बजाय, इंसानों की कुदरत, इंसानों के इख्तियार को मानने के बजाय यीशु के इख्तियार को मानने की जरूरत है। यीशु की खुशखबरी ये है उसने मेरे लिए अपनी जान दी, और यीशु की खुशखबरी का नतीजा ये है मेरी जिंदगी में कि मैं उसकी खातिर अपनी जिंदगी गुजारूं। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और एडल इम्तियाज विलियम इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। दुआमन खुदा ने जिंदा आसमानी बात बेहद शुक्रगुजार हूँ तो अपने दरवाजे हमारे लिए खोले। उन इलाकों के लिए दुआ करते हैं जहाँ तेरे दरवाजे नहीं खुल सके। खुदा कोरोना की बात सुनते हुए खुदा राहिम कर फजल करता कि खुदा वो भी दरवाजे खुले और लोग तेरे नाम को इज्जत और गुजार हो। खुदा तेरे बंदा के लिए खास दुआ करता हूँ जिसने तेरे गहरे भेद खुदा हमारे लिए खोले। अपने बंदा को अक्ल और दानिश फहम अता कर। इसी तरह पूरी इस कलाम के वसीला से पूरी कलीसिया को खुदा कर दे। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो तेरे घर में नहीं आ सके उनको ही बरकत से माला माल कर। हमारा गाना बजाना तेरे हजूर में मकबूल है। खुदा हम तेरे घर में सलामती से आए हैं, सलामती से वापस जाए।
बल्कि पाकिस्तान पर तेरा फजल व खुदा वो हिफाजत और निगरानी कर, सलामती बख्श, जहाँ जहाँ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है, अपने हुजूर में कबूल फरमाना, हर किस्म की दहशत गर्दी से इस मुल्क को बचा के रखना। यीशु के नाम में ये कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 458 गाएंगे। गीत नंबर 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। गीत नंबर 458, और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम इस इबादत में शामिल होकर यीशु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने यहाँ पर मौजूद हैं सभी को छू और बरकत दे। हमारा तेरी इबादत के लिए इकट्ठे होना हमारे लिए बरकत का बायस हो। ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में दिए हैं खुदावंद तू इन्हें भी कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे। ईमान में बड़ा मजबूत कर जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना। खुदावंद तो हम सब की हिफाजत कर कोरोना वायरस से और बीमारियों के हमलों से हादसात से हम सबको बचाए रख। तेरा हाथ हम सब पर भर जाए। यीशु तू हमें महफूज कर ले और हमारे साथ हो और हमारी जिंदगी से यीशु की गवाही हो। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और हमारी हिफाजत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ करना। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। Amen.